and in this video I will be covering chapter 14, elasticity of demand of the microeconomics HL Hauser series, and this is one of the important and easiest chapter and most important chapter of the microeconomics. If you have grasp over this chapter, I will say everything will be easy, and I have covered this chapter in a greater and better detail in the finest and the best possible manner, easiest of the easiest manner. And I hope there will be two videos of this chapter in part 1 and 2. So moving on, these are my Telegram, email and Facebook links. You can contact me through these. Do reviews and rate the videos if you like it on the YouTube. So moving on, this is chapter 14. Let's start. Elasticity of demand. Who introduced it? Marshall introduced it. So if say prices of a product declines, just I am giving you an overview first. Prices of a product declines, then obviously its quantity will increase, quantity demand of that product will increase because its prices has go down. And on the other hand, if prices of a product increases, its quantity demand will decrease. You know that. Okay, so but how much quantity changes? This QD is increasing, but by how much quantity? We do not know that. Provided by price elasticity of demand. This has been provided by price elasticity. Because why we have taken prices? Because prices are declining, and due to prices we are seeing an fluctuation in the quantity of a certain product. Okay, so first we should go through how QD depends on. QD depends on, suppose you went to the market to buy a certain quantity of product, and first you will see that what is the price of the price tag or MSP, not MSP, MRP of that product. You will see through that. And what is the income, what is the money in your pocket, what amount of money you have, you will see through this also. And prices of related commodity. Suppose you are going to buy a telephone in the market, and nowadays MI phones are flooding in the market because of the cheap prices and the functions they give. Though Samsung is giving a best competition in nowadays. So when you buy a product, it depends upon the prices and the income you have and the prices of related commodity, that is MI, Samsung, Nokia. You will see through these features and see the best of the possible available in the market. So does E responsive to quantity demanded. E is elasticity. Elasticity is also responsive to this kind of thing. We will see through why this is possible. First let us go through the definition of price elasticity. Price elasticity means if there is a change in the prices, percentage of change in the prices, then what change it will bring in the quantity demanded. Earlier we have seen prices decline and Q increases. So the percentage of change in the prices, what this change in prices will bring this change in quantity. This is price elasticity. EP is, it is denoted by EP. And what is percentage change in quantity is what is the delta Q by Q. Delta Q is change in the quantity because of the price decrease or increase by Q. How we calculate percentage is this, like delta C 70 में से 100 नंबर आए हैं किसी के, डेल्टा C कितना है 70, तो या फिर जो भी है C हमारे टोटल मार्क्स थे 100, तो वी कैलकुलेटेड बाय 70%. इन द सिमिलर वे इफ़ वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज डेल्टा Q by Q into 100 and upon percentage change in prices delta P by P into 100. 100 cancel out by 100, so this remains. This is our price elasticity. That is हमने मार्केट में प्राइसेस में चेंज आने से हमारी डिमांड में कितना चेंज आया है.
परसेंटेज ऑफ मान लो प्राइस की रिडक्शन हुई है 5%। 5% प्राइस रिड्यूस होने से किसी भी क्वांटिटी का हमारी डिमांड कितने परसेंटेज बढ़ती है या घटती है? ऑब्वियसली प्राइस डिक्लाइन हुआ तो हमारी डिमांड बढ़ेगी. सो दिस इज ओनली वी आर कैलकुलेटिंग ओवर हेयर. सो मूविंग ऑन, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? इज इनकम में चेंज आने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया है? व्हाट चेंजेस हैज़ बीन ब्रॉट बाय percentage change in income in the percentage change in quantity. If income of a consumer increases, then obviously quantity demand will increase if it's a luxurious good. If it's an inferior good, then quantity demand of it will decrease. We will see through this in the coming video. So delta Q by Q, percentage change in QD is delta Q by Q, and percentage change in the income is delta I over I. Okay, 100 by 100 it cancel out, it doesn't matter. And what is cross elasticity? It is denoted by EC. I haven't write over here. So this is a percentage change in the quantity of a product due to percentage change in the related goods price. अगर सैमसंग के मोबाइल की प्राइस की कीमत डिक्रीज़ कर गई तो वो MI के Xiaomi के फ़ोन की क्वांटिटी को कैसे अफेक्ट करेगी? अगर सैमसंग ने अपने प्राइस रिड्यूस कर दिए तो जो क्वांटिटी डिमांड MI की थी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब लोग सैमसंग पे स्विच करने लग जाएंगे. सो दिस इज़ क्रॉस मीन्स MI एंड सैमसंग हैव बिन इनकी जो क्वांटिटी है वो आपस में क्रॉस कर रही है, क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन है, these are crossing each other. So that is why the name is given cross elasticity, that is percentage change in QD by percentage change in the related price of the goods. So obviously a related price could be complementary and substitutory goods. Okay, we have covered this in a greater detail in this video also. So moving on, the price elasticity, that is EP. EP is what? Degree of responsiveness shown by quantity demand to change in its prices. Okay, we have discussed this कि इतना percentage degree of response दे रहा है QD change with respect to change in the prices. We have now other factors remaining constant. What are the other factors? Other factors are income of the consumer considering constant, and prices of related goods are considered as constant. Only thing vary is EP prices. So if say 5% rise in the prices of a biscuit, अगर पार्ले जी के प्राइसेस 5 रुपये बढ़ गए हैं, it cause 10% decline in the quantity. So what is the EP? EP is percentage change in quantity, percentage change in QD by percentage change in prices. परसेंटेज चेंज क्या हो गया? -10 था, डिक्लाइन हुआ है ना उसकी क्वांटिटी, -10 ओवर 5, दैट इज -2. EP आ गया हमारा -2. नाउ सपोज एन अदर केस इज देयर वेयर 5% डिक्लाइन इन प्राइसेस gives to 10% rise in quantity of पार्ले जी. अगर ठीक है तो उसके अंदर 10 by -5 आ जाएगा तो -2 आ गया. Now the question arises is इधर भी -2 इधर भी -2, but here prices are rising by 5% and here prices are declining by 5%. So it is giving the same amount of EP. So we came to a conclusion that we should neglect the sign of EP, whether it's negative, positive, it is being taken as a positive as a convention. By convention we take positive sign. So as only magnitude needed, we only needed magnitude. We also see EP as negative, we will discuss that, but for convention we are taking it as positive. Okay, so this is how we calculate EP. परसेंटेज चेंज कितना आया क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस में चेंज आने से.
Now suppose EP is greater than 1. What it means is EP greater than 1 means is elastic demand. Elastic demand बोलते हैं हम EP अगर greater than 1 होता है. Now can you imagine when will be the EP greater than 1? Only and only when numerator is greater than denominator. That is delta Q by Q is greater than delta P by P. Only and only then. So if delta Q by Q is greater than delta P by P, that is percentage change in prices से बड़ा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइसेस 2% डिक्रीज़ हो रहे हैं किसी भी क्वांटिटी के, 2% प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो उसकी क्वांटिटी, प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी. तो वी सी की वो 5% या फिर 10% क्वांटिटी इंक्रीज़ कर गई, डिमांड क्यू डी इंक्रीज़ कर गया 10%. प्राइसेस तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है और परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस 2% हुआ है, मगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वी सी इज़ 5%. सो इट इज़ 5/2 विच इज़ 2.5 is greater than 1. So these are elastic product. Elastic product क्या होते हैं? Company when a company see that there is a product that they are producing have a elasticity of greater than 1, so they change the prices by little, and they see that quantity demand of it increases in a proportional, not in a proportional manner but greater than the proportional manner. So if Q that is this, that is percentage change in Q is greater than percentage change in prices. So that is with a small change in prices Q jumps very large. Example is television or mobile phone we can there whose elasticity is greater than 1. जिसका थोड़ा सा भी चेंज, सपोज सी कार में प्राइसेस का a car is being sold at rupees suppose 10 lakh rupees. Now if a company reduces prices of a car by say 10,000, then you will see the jump in the quantity demand of that car with respect to others. Just a small fraction, that is 10,000 equal to 1% change will bring them a change of 10% in or 5% in quantity demanded. I hope I am making sense and you are getting it. So moving on. So if EP is greater than 1, इसको क्या बोलते हैं? That is inelastic demand. Earlier on we were discussing elastic. Elastic means the stretch is more. Stretch is elastic means the stretch. Elastic वो plastic elastic होते हैं ना, it is elastic, rubber is elastic. So elastic means the stretch is more. So EP is greater than 1 means the stretch is more. EP less than 1 is stretch is less. That is if you give a push by reducing or increasing the prices. So suppose if you reduce the prices by 10%, but you will see that stretch is not that much. If you reduces the prices by 10%, you will see that quantity percentage of quantity change is either 2% or 5%. So you will not get the commensurate result that you were expecting by reducing the prices. Okay, so delta Q by Q over is only in डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. दैट इज ये कंडीशन पॉसिबल तभी होगी जब डेल्टा पी बाई पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई क्यू. नाउ सॉरी आई हैवंट डिस्कस द ग्राफ, आई एम लिटरली सॉरी. First discuss the EP is greater than 1 graph. So suppose you were at here at this point where prices of a product is OP. Now prices reduces with reduction in the prices. And earlier on you were consuming ON quantity of goods. Now suppose the prices reduces, that is prices are brought to OP dash, and you see that quantity increases ON dash due to reduction in prices. And here you can clearly visualize that NN dash is greater than PP dash, and N dash is greater than PP dash. See, for drawing this graph you have to visualize the things that how should I draw the graph, because see here it is kind of a flat curve, and if I compare it with the inelastic curve, it is kind of a vertical curve.
See, so for drawing the graph, you have to consider what are you going to derive, what are you going to prove from this graph. I want to prove that NN dash is greater than PP dash, so I make it a little flatter curve, and in here I make a steep curve, slant curve. So in order to prove that it is inelastic, because in inelastic I have to prove that PP dash is greater than NN dash. So that is percentage change in prices is greater than percentage change in quantity. So that is with large change in prices, only a small change in quantity is seen. Example common salt. अब salt तो हम उतना ही खाएंगे, salt की demand तो necessary good है. तो if prices of a salt declines by say 5 rupees, the company will not see that the quantity demand will increase, because quantity of salt that one consume per day is fixed, so that will not affect that much. That is inelastic product. Common salt is inelastic product. So moving on, when the EP is 1, EP is 1 means when percentage of prices change is 5 and it brings a 5% change in the quantity demanded, that is 5 by 5, that is unitary elastic demand. Quantity demand of QD changes with same proportion as price changes. Okay, here it is a point to note that elastic and inelastic are used in relative sense. Okay, now we have seen that elastic and inelastic goods are there. So how do we relate it, how do we say that it is elastic and inelastic? Only by comparing it with other. Suppose a good having a price elasticity, EP is, P is price, the price elasticity of 3, and a B good have price elasticity of 2. What it means is A is more elastic than B. It only means this. ये नहीं है कि हम इससे कुछ ड्राइव कर रहे हैं. वी आर ओनली यूजिंग EP टू कंपेयर इट विद सम अदर प्रोडक्ट. कंपनी को EP क्यों चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट का? ताकि वो दूसरे की कंपनी का, जो मान लो नोकिया है, नोकिया अपने गुड का EP देखता है, वो देखता है कि उसकी MI का EP कितना है, सैमसंग का EP कितना है, तो उसको कंपेयर करके वो अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी तैयार करता है कि मैं प्राइसेस को थोड़ा सा डिक्लाइन करूंगा. अगर उसका EP इतना है और मेरा EP इतना है, मैं मेरे प्राइसेस को थोड़ा सा डिक्लाइन करूंगा तो मेरी क्वांटिटी ज़्यादा जंप करेगी. मगर मैंने प्राइसेस में तो थोड़ा सा पैसा गवा दूंगा, मगर क्वांटिटी लोग इतनी ज़्यादा परचेज कर लेंगे कि मेरा रेवेन्यू ज़्यादा होएगा, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा. So that is why company make a strategy out of there. So with change in the prices, QA is with change in price, QA is more changing than B. What it means is this only. So similarly in inelastic is used in relative sense. We use this all in relative sense. Now role of substitution. Substitution goods का क्या role होता है in elasticity? Suppose an industry is there for entertainment. For entertainment we have TV is there, we have phone, we have cinema, or we have theater to watch. Okay, for entertaining ourselves. Though lots of games and stuff are there, outdoor games are there. So take another example, that the soaps you use in your daily uses, that is Lux, Nirma, Godrej and Himani. So if a product, what I mean to say is, अगर लक्स के प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं, सपोज सबके प्राइसेस 10 थे एंड पीपल, इनकी क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है. Lux, Nirma, Godrej and Himani have a similar quality and a similar prices of ₹10, and if prices of Lux is reduced, then people who are using Nirma, people who are using Godrej and Himani will switch to Lux. So what it means is, so let's first discuss this. Prices down, people will substitute other product for TV or Lux if prices of TV decline also. So greater than QD for TV and Lux. What it conclude is, greater the number of substitute, greater will be the price elasticity of demand. Why is this? Because हमने देखा कि
लक्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट थे, वी हैव लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ लक्स, हमने उसके अंदर थोड़ा सा प्राइस चेंज किया तो एकदम से क्वांटिटी लक्स की ज़्यादा लोग बाय करने लग जाएंगे क्योंकि लक्स के प्राइसेस कम आ गए हैं। अगर इफ़ सपोज लक्स के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये तीनों नहीं होते, या फिर एक निरमा ही होता, लक्स और निरमा, और या फिर सिर्फ लक्स होता, एंड इफ लक्स रिड्यूसेस प्राइसेस देन लक्स कंपनी विल सी दैट क्वांटिटी डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट नॉट अप टू देयर एक्सपेक्टेशन, वो उतनी नहीं बढ़ी, 5% उन्होंने प्राइस डिक्रीज़ किया एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि क्वांटिटी डिमांड 10% हो इंक्रीज़, मगर ऐसा नहीं होगा जब तक उसके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं है। जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना कस्टमर बेस होता है, निरमा के अलग कस्टमर होते हैं, गोदरेज के अलग कस्टमर होते हैं, हिमानी के, सबके अलग अलग कस्टमर बेस होता है हर एक कंपनी का। अगर आपको उनके कस्टमर काटने हैं ना दूसरी कंपनी के, तो ये स्ट्रैटेजी खेलनी पड़ती है कंपनी को। सो दैट इज़ वाई किसी भी प्रोडक्ट का अगर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है किसी भी प्रोडक्ट के, तो वहाँ पर ईपी का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइसेस रोल मल्टीप्लाई हो जाता है वहाँ पर। सो अब इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ देयर, कॉमन सॉल्ट में क्या है, कितना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्स्टिट्यूट तो उसके भी मिल जाएंगे, टाटा है, फला है, एक ओके। सो लेट्स सपोज देयर इज़ अ DRDO मेकिंग अ मिसाइल ओवर देयर, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास या फिर किसी और के पास, तो उसके प्राइसेस रिड्यूस हो डिक्रीज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी। So suppose common salt is there, no other substitute, so price change does not affect QD that much, so EP is less than 1 because we have already discussed inelastic हो जाएगा ये, people will consume same quantity no matter the prices because common salt is consumed with the same quantity and common salt is a inelastic good. We are discussing here role of substitution goods in elasticity, okay, remember that. Now moving on, perfectly inelastic and perfectly elastic demand. Perfectly inelastic means आप कितना भी जोर लगा लो, प्राइसेस को कितना भी रिड्यूस कर लो, प्राइसेस को मैंने मान लो 100 रुपये थे, मैं 50 रुपये ले आया, फिर भी मेरी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई मार्केट के अंदर, दैट इज़ व्हाट इन परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज़ EP इक्वल टू 0। EP 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। When will be the EP 0? When numerator will be 0. When will be the numerator will be 0? When delta Q is 0. Remember this one, delta Q is 0. So that is change in the goods, quantity demand of a goods is 0 और वो आया ही नहीं। So for that delta Q change should be 0. Delta Q by Q over delta P by P. So this is price and this is quantity. Quantity में कोई change नहीं आ रहा, that is you are consuming same quantity OQ, suppose O is there, so it is a straight line. कितना भी price को घटा लो बढ़ा लो, same quantity of goods are consuming, that is perfectly inelastic. And perfectly elastic means EP is equal to infinity. Infinity, when will be the infinity is there? When denominator is 0. Denominator is 0. अब denominator 0 का मतलब क्या है, प्राइस ये वाला delta P is 0. So if delta Q change should be large, delta P approaches to 0, it means delta P अगर आपने थोड़ा सा भी इट मीन्स परफेक्टली बोला इसने, अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस 0.03% सपोज करो चेंज कर दिया, तो उसी से ही क्वांटिटी डिमांड विल बी ह्यूज, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी दैट EP अप्रोच टू इन्फिनिटी. सो दिस इज़ द केस. सो स्मॉल रिडक्शन इन प्राइसेस कॉज QD very very large or vice versa, that is small increase in prices QD बहुत नीचे मार जाता है, QD approaches to 0 then. So in perfect competition market, discussed later, we will discussing this point later on. So moving on,
price elasticity is this percentage change in Q by percentage change in price, that is this delta Q by Q divided by delta P by P. And if we solve this equation, delta Q by Q अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं देन P बाय डेल्टा P बन जाता है, तो P बाय डेल्टा P डेल्टा Q बाय डेल्टा Q. सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इफ़ यू वांट बाय ठंडा दिमाग करके, तो आप सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज़ व्हाट EP इज़. So why midpoint method of calculating percentage change? Now suppose we are having a good whose prices are rupees 4 and its price rises by rupees 2, that is it goes to 6. And so if we calculate the percentage change कितना आया, 6 minus 4 is 2. हमने negative we are neglecting for the sake of convention we assumed. So 6 minus 4 divided by 4 is initial prices were 4, so it comes out to be 50%. तो 50 वैसे भी 2 जो है 2 रुपये चेंज आया वो 4 का कितना है 50% है. दिस इज़ व्हाट वी कैलकुलेट. और यहाँ पर सपोज सेम गुड इज़ देयर हुज प्राइसेस आर ₹6 एंड द प्राइस इज रिड्यूस टू ₹4. तो यहाँ पर भी 2 रुपये का चेंज आया है, मगर यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस दैट इज़ 2/6 होगा ना. देखो इनिशियल क्वांटिटी 6 थी, तो दैट इज़ वाई वी हैव टू अज्यूम हेयर 6 और अर्लियर ऑन वी वर हैविंग 4 ओवर हेयर. So if we calculate its percentage, it comes out to be 2/6, that is 1/3, that is 33.33. Now see this effect. हमने prices 2 रुपये से फ्लक्चुएट किए हैं, 2 रुपये घटाए बढ़ाए हैं, ठीक है. तो उसमें करने से हमारी परसेंटेज चेंज में कितना बदलाव आ रहा है, कहाँ 50%, कहाँ 33.3%. Now suppose this section is there. Q1 इज़ हमारे प्राइसेस 4 रुपये थे, हमने तब हम Q1 कितना कंज्यूम कर रहे थे 120. एंड इफ़ आवर प्राइसेस आर ₹6 वी आर कंज्यूमिंग Q2 इज़ दैट इज़ 80 अमाउंट ऑफ गुड्स. सो व्हाट इन अ वे इट गिव्स इज़ 120 minus 80 over initial price Q, that is 33.3, and this gives us 120 minus 80 over 80, that is 50%. If we calculate its EP comes out to be percentage change in Q वो क्या कितना है 50%, this is 50, and percentage change in EP. इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले 6 जहाँ प्राइसेस 6 थे और वो 4 हो गए, और अब क्वांटिटी 80 थी वो 120 हो गई है क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर रिड्यूस हो गए. सो यहाँ पर EP comes out to be 1.5, और in here EP comes out to be this 33.33 divided by 50. यहाँ पर 0.66 आया. मगर देखो हमने EP में क्या बोला था कि प्राइसेस रिड्यूस हो और बढ़ रहे हो, हमने EP का कन्वेंशन नेगलेक्ट कर दिया था उसके अंदर. मगर यहाँ पर हमने चेंज देखने को मिला कि हम लोग बड़ी क्वांटिटी 2 रुपये एक इसके एस्पेक्ट में 4 रुपये के एस्पेक्ट में 50% चेंज आ जाता है. तो उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि EP यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है इन दोनों केस में. तो न्यूमेरिकली जब हम सोल्व करते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब नंबर परसेंटेज बहुत बड़ी होती है. यहाँ पर परसेंटेज बहुत बड़ी है 50%. तो इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंज. सो बेस्ट इज वी टेक 6 + 4/2, दिस इज 6 + 4/2 divided by 2 as base prices. हम बेस प्राइस लेते हैं. बेस प्राइस क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर 6 - 4/4 की जगह हम बेस प्राइस लेंगे. बेस प्राइस इज दिस 5. तो 6 - 4/5 into 100 is 40%. And similar in this way, if we calculate its base price, what is the base price? 120 plus 80/2 is 100.
So what is the base EP of this is 120 minus 80 divided by 100. This is 120 plus 80 by 2. So it comes out to be 40. अगर हम इसका EP निकालेंगे, that is percentage change in Q का कितना percentage change है 40, और percentage change in prices that is 40, वो EP 1 आ रहा है. So in these cases EP is varying a lot, so we use midpoint theorem. I hope this makes sense to you. Why midpoint method for calculating percentage change? We only consider not this point in your notebook, that we only consider midpoint method when percentage change is very large. Here percentage change is very large, 50 and 33. So we take midpoint theorem to calculate. अब 2 रुपये का घटना बढ़ने से इतना फ्लक्चुएट दिखा रहा है, तो वी टेक इट एज अ मिड पॉइंट थ्योरम. सो EP अब कितना हो गया, डेल्टा Q बाई Q था ना अर्लियर ऑन. देखो यहाँ पर इफ आई EP, व्हाट वाज EP, डेल्टा Q बाई Q. here delta Q by Q divided by delta P by P. And what is delta Q? Delta Q is Q2 minus Q1. And delta Q by Q कितना हो गया, Q is Q2 plus Q1 by 2, because we have taken base price over here. And what is delta P is P2 minus P1 and base price. अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी जगह हम डेल्टा Q लिख देंगे, इसकी जगह डेल्टा P. डेल्टा Q बाय डेल्टा P, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2. P1 प्लस P2 ऊपर चला जाएगा, और क्योंकि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, डेल्टा P नीचे आ जाएगा. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन बुक एट पेज नंबर 286. लेट्स what is the page number? 286. How could it be 286? Okay. This is the problem that I think that we should discuss. Suppose a seller of textile cloth wants to lower the prices of its cloth from rupees 150 मीटर to इतना 142.5 मीटर. एक सेलर है, he wants to lower the prices of its cloth 150 से 142.5, that is 7.5 rupees. He decreases the prices per meter. If its present sales are 2000 meters per month, and further it is estimated that its price elasticity of demand for the product is equal to 0.7, show that whether or not his total revenue will increase as a result of his decision to lower the prices. उसने अपने prices को reduce कर दिया है. अब वो ये देखना चाहता है कि मैंने प्राइस रिड्यूस कर दिए तो मेरा रिवेन्यू बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कि लोग प्राइस के रिडक्शन होने से मेरी क्वांटिटी ज़्यादा बाय करते हैं कि नहीं करते हैं. अरे भाई तेरा पहले से EP तो तेरा 0.7 है, कैसे करेंगे? तो लेट्स वी डिस्कस दिस. दिस इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q. व्हाट इज़ प्राइसेस? प्राइसेस इनिशियली वाज 150 एंड व्हाट इज़ Q? लोग पहले 2000 मीटर पर मंथ खरीद रहे थे. व्हाट इज़ डेल्टा P? 7.5. व्हाट इज़ EP? 0.7. Put this in the equation, it comes out to be 70. डेल्टा Q comes out to be 70, यानी कि चेंज कितना आया? 70 मीटर का ही चेंज आया, और प्राइसेस में चेंज कितना था? 7.5. So since the prices has fallen, the quantity demand will increase by only 70 meter. So the net quantity demand will be 2070 only. Now पहले कितना रिवेन्यू कमा रहा था? पहले 2000 मीटर ऑफ क्लॉथ ही वॉज सेलिंग एंड एट रुपीज़ 150. So what is the revenue he is getting is 2000 into 150, that is 3 lakh. So now now the revenue is he is selling 2070 into 142.5.
सो व्हाट इट कम्स आउट टू बी 2,94,975. तो उसका रेवेन्यू रिड्यूस कर गया. So that is how the company strategize their policy, strategize their management, that they should, whether they should reduce the prices or whether they should increase the prices. So I hope I am making sense. Thus with the reduction in prices his total revenue will decrease. अगर EP उसका ज़्यादा होता तो प्राइस रिड्यूस से उसका रिवेन्यू बढ़ता, उसका प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाता. That is what we discuss. जो भी डाउट आता है प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो फाइंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी फ्रॉम ए डिमांड फंक्शन. नाउ हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी वी हैव कवर्ड व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी एंड वी हैव ऑल्सो सीन हाउ वी कैलकुलेट इट. बट आई वॉन्ट टू डिराइव, आई वॉन्ट टू फाइंड द इलास्टिसिटी from a demand function. Demand, what is demand function first? Demand function is a function of price and quantity, that is P and QD relation. That is this, DD is a demand. If prices of a good are increasing then quantity of it will decrease. देखो X पर अगर prices ज़्यादा होते गए तो y उतना ही कम होता जाता है. R पे y कम है, R डैश पर y is less and R पर y is more because R डैश पर prices ज़्यादा है. So this is what we know at least. So suppose we are at this point where the cursor is, that is R point, and the prices of a product is OP price था और OP पर हम कितनी quantity खा रहे थे, OQ. Now prices of it has been risen, that is we reach to point R dash and delta P prices कितने से increase किया, PP dash. So delta P is PP dash. So what is delta Q? Delta Q कितना, delta Q means what is the change in the quantity of Q, that is delta Q, that is QQ dash. So हमारा EP का formula ये होता है. Okay, if we put delta P and delta Q values, delta P and delta Q value in that, we comes out to be this. Okay, sorry. So now EP is this. We should, now I want to derive the EP from this curve, this equation of demand function. Every equation can be written, every linear equation can be written in the form of y equal to mx plus c. I hope you have learned this in your 11th and 12th mathematics, that every equation can be written in the form of y equal to mx plus c, where y is quantity demanded over here, m is the slope of dd, and x is the here price, c is constant. Now slope of dd, m is slope of dd. Slope of dd क्या होता है? Slope of dd here is delta y by delta x, delta y by delta x, y2 minus y1 or 1 upon x2 minus x1. Here slope is negative. Why? Because here theta is greater than, theta means this dd dash का with angle with respect to x axis is greater than 90. So देखो यहाँ पर dd is making an angle greater than 90 तो यहाँ तक होता, it is making greater than 90. So slope of dd is negative because theta is greater than 90 and tan theta is negative होगा ना यहाँ पर slope. And also see through this point, tan theta को हम लोग क्या लिखते हैं, delta y over delta x. delta y क्या है, y2 minus y1 over x2 minus x1, that is delta y is delta q के बराबर होगा और delta x किसके बराबर होगा, delta p के. And we have already calculated delta p और delta q की value. delta p is pp dash, delta q is qq dash. So qq dash by bp dash is our slope. Now this equation, I have write this equation in this form so that we could match it with the demand function.
y की जगह मैंने q लिख दिया क्योंकि y जो y एक्सिस थी यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड था. सो y, if we replace y with q and c is constant over here, if I take a as a constant over here and m is minus b. Why minus b? Because slope is negative over here. Slope is negative, I have already discussed. So and x is prices because on the x-axis prices is p. So this comes out to be this: quantity demanded is equal to a minus bp, where minus b is the slope or b is the slope. We have added negative here. So EP का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, एंड डेल्टा Q बाई डेल्टा P इज स्लोप होता है ना, हमने देखा है. दिस इज हेयर डेल्टा Q बाई डेल्टा P इज स्लोप. सो EP comes out to be EP equal to what is the slope? B is the slope, B into P by Q. This comes out to be our price elasticity in terms of demand function. Demand function का मतलब क्या होता है? In terms of demand function का मतलब is in terms of its tan theta, in terms of its slope, in terms of the slope of equation. It comes out to be this: elasticity is equal to slope into price by Q. हम elasticity इससे भी निकाल सकते हैं. Now a numerical is discussed over here. Let's take a pause for a second. Even in the book itself, Q is equal to 720 minus 25p. We need to find EP at price of rupees 15 per liter of Q. Suppose Q is a milk, and if prices are rupees 15 per liter of the milk, then Q is, if we put prices 15, that Q comes out to be 345, and we calculate EP. EP is B into P by Q. B is 25 over here, and we put 15 by this, and we comes out to be this. It is so as simple as this. Now I want to show you the relation between total expenditure and EP. See, EP depends on prices and quantity. It is clear. EP equal to B into P by Q. So it comes out to be that EP depends on prices and quantity, and prices and quantity has been related to expenditure. मैं कितना expenditure करूँगा किसी भी product पर, it depends upon the prices of that good and quantity I buy it. So total expenditure is OP. OP is, suppose this is the price, and OQ is the quantity I am buying, that is area. OQRP is my total expenditure. As EP is a function of P and Q, so TE depends on EP2. I have discussed this. Now this relation between total expenditure, that is TE and EP, is helpful to producer or seller, as now he can estimate total revenue. EP से TE से क्या निकाल सकता है? देखो जितना मैं टोटल एक्सपेंडिचर करूँगा, सेलर और प्रोड्यूसर का वो रिवेन्यू हुआ ना, so he can estimate total revenue with fall or rise in prices, and as one's expenditure is other revenue. I hope I am making sense. So this is not a big task to study elasticity. It is one of the easiest chapter, but you have to sail through this. So suppose EP is percentage change in this, Q by percentage change in prices. Now we have discussed here the relation between EP and total expenditure. Suppose EP is greater than 1. These three cases we have discussed. Here EP is greater than 1 means numerator is greater than denominator, that is percentage Q is greater than percentage P, and EP less than 1 means delta Q by is less than EP equal to 1 means this delta Q equal to delta P. Now we have discussed two cases here.
when prices falls and when prices rise. In this case, when prices falls, if prices are getting reduced or declines, then quantity demand of a product will increase, as simple as this. Now we here see that क्वांटिटी जो बढ़ती है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वो परसेंटेज चेंज जो प्राइसेस होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब EP1 होता है. सो वी सी दैट TE increases, that is total expenditure increases. Like here we discuss, like in the previous example we see that here, where was that example? Let's wait. Where EP was 0.7 and EP is less than 1, see here, and total revenue declines. And EP if greater than 1, then total revenue will increase, that is total expenditure will increase also. So I was considering that. So EP greater than 1, then total revenue increases because quantity will increase in a greater proportion than the prices has increased. Here prices fall too, but Q increases. Prices के घटने से एक्सपेंडिचर भी घटेगा ना, प्राइसेस के घटने से रिवेन्यू घटेगा, मगर क्वांटिटी लोग इतनी ज़्यादा बाई कर लेते हैं क्योंकि EP ग्रेटर देन 1 है तो उसका रिवेन्यू बढ़ जाता है. एंड in the similar case, if EP greater than 1, if prices are rising, prices अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो QD कम होएगा. Simple as this. P if increases, then quantity demand of product will decrease. So total expenditure is less here. Why? Total expenditure is increasing here, but why less here? Because here P rises but quantity is decreasing, as TE equal to Q into P, and delta Q percentage is greater than delta P, because EP में क्या होता है ना, EP greater than 1 पर delta Q is greater than delta P. So here comes out that prices का जो रिडक्शन हुआ है वो उतना कमेंसुरेट लेवल पर नहीं हुआ है. हेयर परसेंटेज डेल्टा क्यू इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज डेल्टा पी, बट उसके हिसाब से तो डेल्टा TE इंक्रीज़ करना चाहिए था, मगर यहाँ पर ये डेल्टा क्यू जो है ग्रेटर का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव में हुआ है, बिकॉज वी हैव नेग्लेक्टेड EP साइन इन बिकॉज ऑफ कन्वेंशन. नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पर वो नेगेटिव हुआ है. दैट इज़ वाई TE डिक्रीजेज TP, बट एक्चुअल Q विल बी सीन डिक्लाइनिंग एज वी हैव नेग्लेक्टेड नेगेटिव साइन, क्योंकि P के बढ़ने से, लेट्स डिस्कस इट अगेन, P के बढ़ने से Q डिक्रीज़ हुआ. Q के डिक्रीज़ होने से Q इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, परसेंटेज Q इतना ज़्यादा है वो परसेंटेज P से, वो नेगेटिव में है ये, मगर वी आर टेकिंग हेयर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा Q, बट एक्चुअली बिकॉज देखो ना यहाँ पर डेल्टा Q इज़ ग्रेटर देन डेल्टा P है, परसेंटेज डेल्टा Q इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज डेल्टा P है, बट यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है. एक्चुअल में तो Q डिक्लाइन होगा ना प्राइसेस के रिड्यूस होने से, प्राइसेस के इंक्रीज होने से, सॉरी. सो इफ़ प्राइसेस इंक्रीजेज एंड Q डिक्लाइंस, बट वो डिक्लाइनिंग का रेशो इतना ज़्यादा है डेल्टा P से कि प्राइसेस तो बढ़े हैं, सपोज करो 10% बढ़ गए, 10% प्राइस बढ़ने से 20% डिक्लाइन हो गया उसकी क्वांटिटी डिमांड में, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो डिक्रीज़ होगा कि नहीं होगा, दैट इज़ टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ होगा ना. So that is what it is saying, nothing more than that. So EP less than 1, if prices are reduced, then EP less than 1 में क्या होता है, ये केस होता है delta Q is less than delta P. It is quite a cumbersome task to explain the PDF.
I know that I am considering to teach on a blackboard in the coming hope so in the coming days. If I arrange a position that I will be teaching on a blackboard in a classroom, that will be good for you guys also. So क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरे को ये सब चीज़ें ना साथ के साथ लिखते लिखते ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, डेल्टा क्यू इज़ लेस देन डेल्टा पी, मगर यहाँ पर बोल के बताना पड़ता है अलग से, क्योंकि आप लोगों का ध्यान फ्लक्चुएट करता है उसमें, क्योंकि आप लोगों का ध्यान पेन पर नहीं होता है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ अ कम्बर्सम टास्क टू टीच अ PDF लाइक दिस. सो इफ sorry, I should have zoom in there. So if P prices of a product declines, अगर डिक्लाइन हुआ तो क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी, मगर क्वांटिटी इंक्रीज़ जो करी है वो उतने लेवल की नहीं करी, क्योंकि परसेंटेज डेल्टा क्यू इज़ लेस देन डेल्टा पी है, वो उतने लेवल से इंक्रीज़ नहीं करी जितने से प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं. अब अगेन यहाँ पर प्राइसेस तो रिड्यूस हुए हैं, मगर ये मैग्नीट्यूड है, डेल्टा पी इज़ मैग्नीट्यूड. अब प्राइस के रिड्यूस ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्राइसेस रिड्यूस ज़्यादा हुआ है, क्वांटिटी बढ़ी है मगर इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि EP ग्रेट लेस देन 1 था, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा जहाँ पर EP की वैल्यू 0.7 थी, EP की वैल्यू 0.7 थी, प्राइसेस रिड्यूस हो गए मगर क्वांटिटी सिर्फ 70 ही बढ़ी है, देखो ना, तो उसकी वजह से उसका रेवेन्यू डिक्लाइन कर गया. So it is same here, TE decreases. Now if in the same case, if EP less than 1 and that is this case delta Q is less than delta P, if prices of a product increases, तो क्या होगा, prices के increase होने से Q will comes out to be seen to be declining. Now total expenditure is P into Q. Here delta P is greater than delta Q. Okay, percentage of delta Q is greater than delta Q और P is seen, ये तो सिंपल केस है ना, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन होगा, क्योंकि हमने कंपनी ने क्या करा, 100 रुपये थे, 100 रुपये किसी का प्रोडक्ट था, उस पर 110 प्राइस कर दिया, 110 प्राइस कर दिया, मगर क्वांटिटी तो डिक्लाइन कर जाएगी उसकी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि इस केस के अंदर EP इज़ लेस देन 1, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी जो फ्लक्चुएट हो रही है वो प्राइस पर इतना डिपेंड नहीं करती, क्योंकि लेस देन 1 है, तो प्राइसेस तो इंक्रीज़ कर गया, क्वांटिटी भी डिक्लाइन कर गई. और ये चीज़ भी है कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस इज़ ग्रेटर देन डेल्टा क्यू. I think I should have a pen over here to explain you with by drawing something. I am really sorry because I'm missing a pen over here. So दोबारा देखते हैं इसमें क्या है कि प्राइसेस बढ़ा, प्राइसेस के बढ़ने से क्यू डिक्लाइन किया. अब प्राइसेस का जो बढ़ना है वो इतना ज़्यादा है डेल्टा क्यू से ज़्यादा है ना, क्योंकि EP लेस देन 1 है, तो वो उसके प्राइस के जो फ्लक्चुएशन है वो इतना नहीं करेगा. तो कंपनी क्या करती है कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी देखती है कि उसके प्राइस अगर मैं 5 रुपये बढ़ा देता हूँ तो लोगों के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उतना ही खरीदेंगे, या फिर उससे थोड़ा कम खरीद लेंगे, 1-2 पीस कम ही, 1-2 ही ग्राहक टूट जाएगा उसका, 1-2 ही कस्टमर चला जाएगा, मगर उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है ना प्राइसेस बढ़ाने से. सो दैट इज़ वाई हेयर total expenditure increasing. I should have explained you here with the proper example. I'm literally sorry. So I think I have explained, तो मैंने अच्छे से कर ही दिया. अगर if I see an example over here, then it would be better for you. Now yeah, a consumer purchases 80 unit of a commodity. No, this is not the example, sorry. Okay, moving on. So when EP equal to 1, EP equal to 1 में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, डेल्टा Q is equal to डेल्टा P.
so there will be no change in the total expenditure, because अगर मैं prices reduce करता हूँ तो भी क्वांटिटी मेरी उतने से ही बढ़ेगी, उतने परसेंटेज से ही बढ़ेगी रिड्यूस करने से। सो कोई चेंज नहीं आएगा टोटल एस्टिमेट में। टोटल रेवेन्यू में प्राइसेस के रिड्यूस करने से मेरा रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, मगर वो क्वांटिटी भी उतने ही परसेंटेज पे बढ़ जाएगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलर पॉइंट हेयर, अगर मैं प्राइसेस थोड़ा सा राइज करता हूँ तो उतने से ही क्वांटिटी, उतनी परसेंटेज की ही क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो देयर इज़ नो चेंज इन द total expenditure over here. I have also explained this with the graph. So moving on to prove relation between, I forgot that I have mentioned it over here, so no need to worry about it. To prove relation between price elasticity and total expenditure. Now EP is greater than 1. We are taking a first case. If prices decreases and delta Q increase करेगा प्राइस के डिक्रीज करने से, और Q increases, so EP is greater than 1 means delta Q is greater than delta P, percentage delta Q, sorry. So it comes out to be like this. If I see from a graph, prices of a P falls, P to P1, that is earlier on I was at R point, and at R point I am consuming OQ quantity of good X, okay, and I am paying OP amount of prices per unit of X. So it comes out that I was having initially total expenditure is P into Q, prices into Q, that is area OPRQ. It is like this. Total expenditure out of my pocket is prices into quantity of a good I bought. And when prices falls, that is at point T, when prices comes out to P1, then Q increases from Q to Q1. Prices के reduce होने से मेरी quantity बढ़ेगी ना, so this comes out to be this, that is area, total expenditure comes out to be O P1 T Q1, because total expenditure is price OP1 into quantity OQ1. This into this is area of this rectangle. Area of this rectangle is this one. Now I want you to consider this, that what is the change in the total expenditure with this. मैंने prices को reduce करने से पहले मैं इतना रेवेन्यू कमा रहा था प्राइसेस को रिड्यूस करने से पहले। अब क्या होगा कि जैसे मैंने प्राइस रिड्यूस करे, मेरा ये रेवेन्यू तो चला गया, ये जो मैं ये कमा रहा था, अब तो मैं इतना कमा रहा हूँ ना, पहले मैं इतना कमा रहा था, अब प्राइस को रिड्यूस किया तो ऊपर वाला पोर्शन तो चला गया, ये वाला तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, ये वाला जो वाइट वाला पोर्शन है ये वाला तो इंक्लूडेड है, और ये वाला ऐड हो गया जो शेडेड पोर्शन है, और ऊपर वाला शेडेड पोर्शन है वो मेरा लॉस हो गया ड्यू टू प्राइस रिडक्शन। अगर एक कंपनी प्राइस रिड्यूस करती है, सो ही विल बी ऑब्वियसली ही विल बी दैट कंपनी विल बी सफरिंग अ लॉस। सो टोटल एक्सपेंडिचर लॉस कितना हुआ उसके अंदर, डेल्टा पी इज दिस इनटू क्वांटिटी इट वाज कंज्यूमिंग OQ, दैट इज Q, इतना लॉस होएगा। मगर उस कंपनी को प्रॉफिट कितना होएगा, प्रॉफिट कितना होएगा, जितना क्वांटिटी में चेंज आया है, कितना लोगों ने कितना ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना स्टार्ट कर दी, डेल्टा Q इंटू प्राइसेस, डेल्टा Q इंटू P, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर गेन। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व दिस। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइसेस, बिकॉज मैंने क्या बोला, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू P इंटू Q। सो एज फॉल इन द प्राइसेस, अगर प्राइस घटता है, विल कॉज TE टू डिक्लाइन टू, that is TE decline by delta P into Q. I have already explained this. Now increase in the Q, TE is also proportional to Q. If increase in the quantity Q, that is delta Q, causes TE to increase, because delta Q has का साइन पॉजिटिव है और वहाँ पर नेगेटिव था। फाइनल माइनस इनिशियल करता हूँ, फाइनल P1 है और इनिशियल P था,
तो माइनस माइनस डेल्टा पी आएगा ना, तो इट कॉजेज अ डिक्लाइन इन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट कॉजेज अ gain in the total expenditure. Total TED increased by delta Q into P. I have already explained this. Now if EP is greater than 1, that is it is a elastic good. If this condition is there, so अगर ये कंडीशन होती है तो ये होगा डेल्टा परसेंटेज डेल्टा Q is greater than percentage delta P. If EP is greater than 1, then this happens to be this as EP greater than 1 and prices fall, so gain wala TE will be greater than loss wala TE. I have already explained this. देखो ना इसके अंदर भी ग्राफ के अंदर देखो ये गेन वाला पोर्शन है, गेन वाला पोर्शन इज प्लस डेल्टा क्यू इंटू पी एंड लॉस वाला पोर्शन इज डेल्टा पी इंटू क्यू. ये पोर्शन तो वैसे भी इससे बड़ा है ना, ये पोर्शन इससे बड़ा है. डेल्टा क्यू पी इज ग्रेटर देन डेल्टा पी क्यू. सो एंड एज this percentage delta Q, I have explained you from the graph, and you can also derive this by from this. So we हमारे पास क्या थी, एक तो डेल्टा क्यू पी था और एक डेल्टा पी क्यू था. अब डेल्टा क्यू इज़ ग्रेटर देन डेल्टा पी, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी भी तो इससे बड़ी होगी ना, समझ रहे हो. डेल्टा क्यू इज़ ग्रेटर देन डेल्टा पी, सो दिस कम्स आउट टू बी दिस ऑल्सो. ये वाला पोर्शन इससे बड़ा होगा. ये वाला पोर्शन हमने यहाँ से भी एक्सप्लेन कर दिया है कि डेल्टा क्यू पी इज़ ग्रेटर देन दिस, और यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं व्हेन ई पी इज़ ग्रेटर देन 1. सो ई पी इज़ ग्रेटर देन 1. सो if I move this delta p into q in the denominator, here it comes out to be 1. सो अब मैं इसको अरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू क्यू. और इसको क्या बोलते हैं, इसको ई पी तो बोलते हैं. दैट कम्स आउट टू बी ई पी इज़ ग्रेटर देन 1. सो वाइस वर्सा वी ड्राइव दैट ई पी इज़ ग्रेटर देन 1 विद दिस कंडीशन. सो रिलेशन एस्टेब्लिश. इसका आगे भी एक्सप्लेनेशन है that we will be discussing here also. So if EP comes less than 1, EP less than 1 पर क्या होता है, लॉस ज़्यादा होता है. जैसे हमने उस एग्जाम्पल में देखा था, EP यहाँ पर 0.7 था और उसकी वजह से उसका रिवेन्यू लॉस कर गया. पहले 3 लाख रुपए कमा रहा था, नाउ ही इज़ अर्निंग 2,94,000 समथिंग. सो he has suffered a loss of like 5,000 rupees, 5,025 rupees. So if prices declines, अब इसके अंदर ये वाला पोर्शन ज़्यादा होगा. देखो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम है. Why? We will be explaining you to this. So if price decline, अगर मेरे प्राइसेस पहले मैं यहाँ पर था, R पर था, अगर मेरे प्राइस डिक्लाइन कर गए, दैट इज़ आई मूव फ्रॉम P to P1, दैट इज़ डेल्टा P इज़ P1 माइनस P. ओके, तो मेरी क्वांटिटी पहले मैं R पर था तो मैं OQ कंज्यूम कर रहा था. नाउ आई मूव टू पॉइंट T, तो आई एम कंज्यूमिंग OQ1. तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज कितना आएगा, पहले मेरा टोटल एक्सपेंडिचर था OQRP दिस एरिया. नाउ टोटल एक्सपेंडिचर विल बी P1T Q1O दिस एरिया. अब इस एरिया के अंदर इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले रेक्टेंगल का सॉरी, ये पार्ट तो आ ही गया जो वाइट है, जो ये वाला पार्ट तो आ ही गया, मगर ये वाला पार्ट नहीं आया. तो इसका मतलब एक कंपनी को इतना तो लॉस सहना पड़ेगा, मगर उसको गेन कितना हुआ, गेन थोड़ा हुआ है ना, गेन इतना वाला पोर्शन हुआ है. दैट इज़ डेल्टा क्यू पी उसका गेन है और माइनस डेल्टा पी क्यू उसका लॉस है. एज सिंस ई पी इज़ लेस देन 1, ई पी लेस देन 1 का क्या मतलब होता है, डेल्टा क्यू इज़ लेस देन परसेंटेज डेल्टा पी. एंड इफ़ आई कंपेयर दिस डेल्टा पी क्यू एंड डेल्टा क्यू पी, इसके अंदर क्या है,
डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन डेल्टा क्यू। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पर लिखूँ, इसी इक्वेशन को मैं रीफ्रेम कर रहा हूँ, दैट मीन्स डेल्टा पी इंटू क्यू इज़ ग्रेटर देन डेल्टा क्यू इंटू पी। एंड इफ़ ये ग्राफ से भी पता चल रहा है ना, मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया ऐसा ग्राफ, वो तो अलग बात है, मगर ग्राफ से भी ऐसा पता चल रहा है। तो डेल्टा क्यू बाय पी, अगर इसको मैं यहाँ ले जाऊँ, इस वाले पोर्शन को डेल्टा पी इंटू क्यू को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, सो इट कम्स आउट टू बी लेस देन 1। ये टोटल लॉस है, ये टोटल एक्सपेंडिचर का गेन है। सो ई पी इज़, और इसको मैं रीफ्रेम करूँगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, इट कम्स आउट टू बी ई पी विच इज़ लेस देन 1। सो सिमिलरली फॉर ये तो आ गया हमारा ई पी लेस देन 1 का ग्राफ, और ई पी ग्रेटर देन 1 का ग्राफ हमने देख लिया। So similarly we can draw the graph of EP equal to 1। EP equal to 1 में क्या होगा, ये दोनों पोर्शन इक्वल कर जाएंगे, जो तो शेडेड पोर्शन है ना उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे दैट इट कम्स आउट टू बी इक्वल। सो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ, सो विद रिलेशन बिटवीन EP एंड TE रिवेन्यू कैन बी सीन पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमारा रिवेन्यू इंक्रीजेज, कब रिवेन्यू इंक्रीज होगा, रिवेन्यू इंक्रीज मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज इफ EP ग्रेटर देन 1 एंड P फॉल्स। हमने देखा ना यहाँ पर, इफ EP ग्रेटर देन 1 और P डिक्रीज करता है तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। और EP लेस देन 1 एंड P फॉल्स, ये उसके बराबर वाला ही केस है। रिवेन्यू उसमें डिक्रीज करेगा और रिवेन्यू इंक्रीज करेगा इस वाले केस में। EP लेस देन 1 है एंड P राइजेज, इस वाले केस में रिवेन्यू इंक्रीज करेगा क्योंकि इसके अंदर EP लेस देन 1 है। प्राइसेस को उसने बढ़ा दिया, प्राइसेस बढ़ाने से लोगों ने क्वांटिटी को कम नहीं किया, उतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि EP लेस देन 1 है। EP लेस देन 1 का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस से उतना फ़र्क नहीं आ रहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पर। तो जैसे कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट अगर आज 20 रुपये है तो अगर वो 25 रुपये कर दिया, 25 रुपये करने के बाद लोगों को खाना तो पड़ेगा ही नमक, तो दे विल बी कंज्यूमिंग एट द सेम और थोड़ा कम कर देंगे मगर उतना नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग। सो वी हैव कवर्ड दिस इन अ बेटर डिटेल। सो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड on demand curve, EP on demand curve. Okay, so measurement of price elasticity, EP हमें measure करना है of demand on demand curve। demand curve हमारी ये थी, पहले भी हमने ये ड्राइव किया है यहाँ पर, where we want to find the elasticity from a demand function। from a demand function we calculate that E is equal to B इंटू P बाई Q, वेर B इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व। ये हमने ड्राइव किया था, यहीं पर हम ये शायद रिपीट कर दिया इन्होंने। सो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट EP एट R पॉइंट। EP इज़ डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाई Q। नाउ स्लोप ऑफ डी डी डैश, स्लोप क्या होगा डी डी डैश का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y क्या हो गया इसका, इस कर्व का, अगर मैं यहाँ से और इस पॉइंट को देखता हूँ, यहाँ पर y 0 है, y यहाँ 0 है और y यहाँ पर OD है। y क्या है यहाँ पर OD है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा p बाय डेल्टा q। हाँ यही होगा ना, डेल्टा p कितना आएगा OD और डेल्टा Q कितना आएगा OD डैश, यही आएगा। सो एट प्राइसेस P कितना, प्राइस P कितना है OP और क्वांटिटी कितनी है OQ।
आर पॉइंट के लिए निकालना है ना ई पी, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट ई पी एट पॉइंट आर. एट पॉइंट आर what is the price OP, and at point R what is the quantity consumed OQ. So if we want to calculate this, slope कितना है डेल्टा P बाय डेल्टा Q, डेल्टा Y बाय डेल्टा X किया ना हमने, डेल्टा Y कितना है डेल्टा P होगा, Y यहाँ पर प्राइस है ना इसलिए हमने डेल्टा P लिया, और यहाँ पर X क्या है Q, तो डेल्टा P बाय डेल्टा X, स्लोप इज डेल्टा P बाय डेल्टा Q. नाउ हमने इससे कंपेयर करके देखा, यहाँ पर डेल्टा Q बाय डेल्टा P था और यहाँ पर डेल्टा P बाय डेल्टा Q था. तो हमने देखा अगर मैं इसको 1 बाय स्लोप करूँगा तो मैं इसके बराबर आ जाऊँगा. सो आई टेक 1 बाय स्लोप इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, एंड इफ़ आई पुट दिस इनटू दिस हेयर, और P बाय Q क्या है, P बाय Q इज़ प्राइसेस एट पॉइंट R is OP and OQ, OP by OQ. So EP at point R comes out to be this. Now further, as slope of DD is constant, देखो ना slope of DD तो constant ही रहेगा, slope of DD is here constant. अगर आप R पे निकाल रहे हो slope, अगर यहाँ पर निकाल रहे हो, जहाँ जैसे जैसे कर्सर मूव करता है हर पॉइंट पर slope constant है. So can we say that slope of DD dash equals to delta y by delta x. देखो यहाँ पर slope of DD dash is equal to slope of dr, बोल सकता हूँ ना, slope of dr equal to slope of DD dash. slope of और slope of dr कितना होगा, delta y by delta x. delta y is here dp और delta x here pr. So I can write it like this, delta P by delta equal to PD by PR, because slope of DD dash equal to OD by y upon x. slope क्या होता है, y by x होता है ना. So y by x, और इसको मैं इसके बराबर भी लिख सकता हूँ ना, अगर मैं dr का और dd डैश का स्लोप बराबर है तो PD या फिर DP बाय PR भी लिख सकता हूँ. एज सिंपल एज दिस. हमने देखा था स्लोप इक्वल टू EP इक्वल टू 1 बाय स्लोप इंटू P बाई Q, ये रहा P बाई Q. नाउ 1 बाय स्लोप की जगह इफ़ आई पुट स्लोप की वैल्यू PD बाय PR, PD बाय PR, इफ़ आई पुट दिस एंड PR ऊपर चला जाएगा, PD नीचे रह जाएगा, PR बाय PD इंटू OP बाय OQ. नाउ आई सी दैट PR इक्वल टू OQ, PR की वैल्यू जो है OQ के बराबर है, तो PR और OQ को मैं कैंसिल कर दूंगा. इट कम्स आउट दैट EP इक्वल टू OP बाय PD, OP बाय PD, दैट इज EP इज इन अ वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला. हमने EP को वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला में निकाल लिया है फ्रॉम द डिमांड फंक्शन. EP को हम लोग हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में भी निकालेंगे, एंड अभी हमने वर्टिकल के फॉर्मूले में निकाला है, दिस बाय दिस, OP बाय PD फ्रॉम द डिमांड फंक्शन. देखो हमने पहले क्या किया है, हमने पहले प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी थी फ्रॉम डिमांड फंक्शन. हमने देखा ये स्लोप इसका ये होता है, ये तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था. सो यहाँ पर एक फ़र्क है, यहाँ पर 1 बाय स्लोप लिया है इंटू P बाई Q, और अगर आप देखोगे यहाँ पर B इंटू P बाई Q लिया हमने. B क्या था, स्लोप 1 बाय नहीं लिया यहाँ पर, मगर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर P ऊपर ले लिया, Q नीचे ले लिया, और वहाँ पर क्या किया है, सॉरी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है प्राइसेस वाई एक्सिस पर ले लिया है, और यहाँ पर क्वांटिटी जो है एक्स एक्सिस पर ले ली है.
आई होप वहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट, देखो हाँ यहाँ पर क्वांटिटी वाई एक्सिस पर लिया है और प्राइसेस एक्स एक्सिस पर लिया है, और इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है. आई वांट टू शो यू दिस ऑल्सो कि इसका रट्टा नहीं लगाना है कि प्राइसेस ई इक्वल टू 1 स्लोप इंटू पी बाई क्यू. रट्टा नहीं लगाना है, बिकॉज हेयर prices we have taken on the x axis and quantity we have taken on the y axis, but there, ये तो शुक्र है मैंने देख लिया, वरना तो मैं खुद ही गलती कर देते. here prices are taken on the y axis and quantity on the x axis, that is why 1 by slope is here. अगर मैं क्वांटिटी को यहाँ ले जाऊँ, प्राइसेस को वहाँ ले जाऊँ, तो 1 by नहीं लगाना होता, सिर्फ स्लोप ही कर देता, इनटू स्लोप कर देता, तो दैट वुड वर्क फाइन. सो ई पी कम्स आउट टू बी ओ पी बाय ओ पी डी, दैट इज वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला. नाउ आई वॉन्ट टू डिराइव द ई पी इन अ हाइपोटेन्यूस एक्सिस फॉर्मूला. नाउ अगर मैं देखूँगा पी डी पी आर ट्रायंगल और ओ डी डी डैश ट्रायंगल सिमिलर है by angle property, that is, इसका ग्राफ चाहिएगा मुझे. सो आई थिंक आई शुड ओपन अ, हाँ ये बेटर रहेगा. सो इसमें क्या है, पी डी आर इज सिमिलर टू ओ डी डी डैश. पी डी आर इज सिमिलर टू ओ डी डी डैश बाय एंगल comparison, because PDR is equal to angle ODD dash. PDR ये D एंगल और इसका D एंगल दोनों में बराबर है, that is what I have taken. और DPR और DOD dash, DPR that is angle 90 और DOD dash ये भी 90 है. और एंगल तो बचा हुआ एंगल तो वैसे ही बराबर हो गया ना. अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इसके दूसरे इस वाले एंगल के ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल के बराबर है, तो तीसरा तो वैसे ही बराबर हो जाएगा, दैट इज़ आर इक्वल टू डी. और वैसे भी ये जो पी आर है वो इस ओ डी डैश के पैरेलल है. अगर मैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखूं तो एंगल डी आर पी इक्वल्स टू डी डी डैश ओ. ये सब है ना मैथ्स का है, मैथ्स में पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो. दैट इज़ वाई आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज ओवर हेयर टुडे, बिकॉज इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स. डिक्टेट करना मैथमेटिक्स में बहुत मुश्किल होता है. आई होप यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इट. सो मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों एंगल सिमिलर है, बोथ ट्रायंगुलर आर सिमिलर. So if they are similar, then PD by OD, ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो ऑर्डर है ना OD D dash and PDR, this had to be like this only, because यहाँ पर जो D एंगल है इसका बीच वाला, ये इसके बीच वाले के बराबर है, D और D बराबर थे. और यहाँ पर जो P एंगल है, एंगल DPR, इसका जो बीच वाला है P, और इसका जो एंगल है DOD डैश, इसका जो O है ये बराबर है. तो पहले मैंने P रखा और इसका भी पहला P रखा है. इसका बीच वाला P है, तो इसका बीच वाला मतलब एंगल P तो मेजर कर रहे हैं ना. DPR का मतलब क्या, एंगल P. तो इसका एंगल जो है DRP, दैट इज़ एंगल R इक्वल टू एंगल D डैश. तो R को मैंने लास्ट में रखा है और D डैश को भी लास्ट में रखा है. इसका ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सिमिलर ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी होती है कि पी डी बाय ओ डी, पहले दो वर्ड इसके पी डी बाय, अरे यार 9th-10th में पढ़ा होगा, पी डी बाय ओ डी इक्वल्स टू डी आर बाय डी डी डैश एंड इक्वल्स टू पी आर बाय ओ डी डैश, और पी डी बाय ओ पी इक्वल्स टू डी आर बाय आर डी डैश, बिकॉज वो हमें ट्रायंगुलर से कंपेयर करना होगा. पी डी बाय ओ पी इक्वल टू डी आर
बाय आर डी डैश इक्वल टू पी आर बाय ओ डी डैश। ये भी सिमिलर ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी होती है। ये तो मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए लिख दिया, मगर वी नीड दिस इक्वेशन ओनली। सिमिलर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अगर दो ट्रायंगुलर सिमिलर है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका रेशो डी पी बाय पी ओ का रेशो इक्वल टू डी आर बाय आर डी का रेशो, आर डी डैश का रेशो, और पी आर बाय ओ डी का रेशो बराबर होता है। ओके, नाउ हमने क्या ड्राइव किया था, ई पी इक्वल टू ओ पी बाय ओ डी फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला। ई पी इक्वल टू ओ पी बाय पी डी, मगर यहाँ पर क्या है, पी डी बाय ओ पी, अगर मैं इसको इन्वर्स करूँगा उसको बराबर, ई पी इक्वल टू ओ पी बाय पी डी था, तो इसको इन्वर्स करूँगा तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो ये आ जाएगा आर डी डैश ऊपर आ जाएगा और डी आर दैट इज़ आर डी नीचे आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, सो दैट इज़ आर डी डैश बाय आर डी, that is lower segment of R by upper segment of R, RD dash by RD, this comes out to be EP। EP की हमने दो वैल्यू निकाली है, फर्स्ट इज OP by PD एंड सेकंड इज RD dash by TR। देखो EP इक्वल टू OP by PD and second is RD dash by DR, we have calculated here lower segment by upper segment, popular method of measuring EP through the hypotenuse, because hypotenuse is what, the demand function। तो डिमांड से ही तो हमें निकालनी थी। और दूसरे भी है कि measuring EP on a नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। नॉन लीनियर एक्चुअल में डिमांड कर्व जो होती है वो स्ट्रेट तो होती नहीं है, तो नॉन लीनियर रहती है। डी डी डैश इज़ नॉन लीनियर, दैट इज़ अ कर्व। सो अगर हमें यहाँ पर वो निकालना है, आर पर अगर हमें ई पी निकालना है, इलास्टिसिटी ड्यू टू प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू प्राइस, तो क्या करेंगे, आर पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, टी टी डैश। ओके, टी टी डैश अगर ड्रॉ किया तो ई पी क्या आएगा, ई पी इज़ लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, आर टी डैश बाय टी आर, ये रहा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, आर डी डैश बाय आर डी, आर डी डैश बाय आर डी, हमने ई पी ऐसे ही तो कैलकुलेट किया था। To find EP at R on DD dash, we draw a tangent through point R, that is TT dash. Above point R at DR slope is positive। अच्छा, ये बोल रहा है कि यहाँ पर तो स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। स्लोप मीन्स the angle the tangent will make with respect to x axis। ये वैसे ही है, वैसे ही मतलब वैसे मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा वो विल मेक, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट छोड़ता हूँ, देखो ये ही जो टी टी डैश है वो नेगेटिव एंगल बना, नेगेटिव स्लोप है इसका, क्योंकि इसका थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। मगर यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँगा तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, सो स्लोप कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। ये मैंने कंडीशन ड्रॉ की है कि स्लोप कैसे कैसे वेरी करता है। थीटा लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप ज़ीरो, स्लोप ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव। अब मैंने देखा कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना दैट प्राइसेस आर देयर ऑन द एक्स वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी इज देयर ऑन द एक्स एक्सिस। आई वॉन्ट टू शो यू दैट हाउ द elasticity is varying with respect to the position of the point we select on the hypotenuse। हर एक पॉइंट पर अलग अलग इलास्टिसिटी होती है, आई मीन टू से इज दिस ओनली। सो ई पी एट पॉइंट आर, आर सपोज आर इज़ द मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट पे क्या होता है, दोनों लोअर सेगमेंट आर डी डैश बाय आर डी इक्वल्स टू 1। So
सो EP comes out to be 1. अगर मैं R से ऊपर जाता हूँ, suppose I reach at point S. S पर क्या होगा, लोअर सेगमेंट SD डैश डिवाइडेड बाय SD, क्योंकि SD dash is greater than SD, so EP comes out to be greater than 1. Example 10 by 2 is equal to 5. So जैसे जैसे मैं यहाँ से ऊपर जाता जाऊँगा वो ग्रेटर देन 1 तो है ही, और यहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी. EP देखो यहाँ पर EP at D इक्वल टू लोअर बाय अपर. लोअर कितना है, DD डैश बाय अपर इज 0. अब this is infinity, x upon 0 is infinity. Now if I move below R point say L, lower by upper, lower is LD dash, upper is LD, and LD dash is less than LD, so it comes out to be less than 1. And if I reach at point D dash where लोअर इज 0, लोअर तो है ही नहीं इसके नीचे कुछ भी, अपर इज DD डैश, सो EP comes out to be 0. So EP increases from R to D and decreases from R to D dash. This is simple graph that to depict that EP varies with respect to point we select. Now price elasticity at various different point on a non-linear demand curve. अब हमने देखा R पर जो EP था वो कितना होगा, RT डैश बाय RT. हमने एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व ली और उसके 2 पॉइंट ले रहे हैं हम, R और S. उस पर देख रहे हैं EP क्या रहेगा. EP इज RT डैश बाय RT ग्रेटर देन 1, मगर यहाँ पर EP इज SJ डैश डिवाइडेड बाय SJ, बिकॉज SJ इज लेस देन SJ dash is less than SJ, so it comes out to be less than 1. So just by we are showing here that EP at point R is greater than EP at point S, as EP can be drawn by tangent to point, and as tangent or slope at R is greater than slope at S. अब slope at R, यहाँ पर जो जितना एंगल है ना और यहाँ पर जो जितना एंगल है, एस का स्लोप ये होगा ना JJ डैश, ये बहुत ज़्यादा है, और ये भी ग्रेटर देन 90 है, ये भी ग्रेटर देन 90 है, बट द स्लोप ऑफ JJ डैश इज हेयर tan थीटा इज ग्रेटर देन दिस थीटा. सो यहाँ का जो स्लोप है, JJ डैश का जो स्लोप है इज लेस देन हो जाएगा, क्योंकि थीटा जितना ज़्यादा बड़ा है स्लोप उतना नेगेटिव होता जाएगा. सो अगर ये ज़्यादा नेगेटिव है ये कम नेगेटिव होगा, तो स्लोप एट TT डैश दैट इज स्लोप एट R is greater than slope at S. This is what it is saying. Now comparing EP at given price P. Now I want you to establish a relation between. हमने इस पॉइंट से क्या रिलेशन ड्राइव किया कि EP जो है स्लोप पे डिपेंड करता है. इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि EP एट R इज़ ग्रेटर देन EP एट S, और R का जो स्लोप था वो ग्रेटर देन S था. तो क्या हम लोग इससे ये ड्राइव कर सकते हैं कि EP डिपेंड्स अपॉन द स्लोप. लेट्स सी विद द एग्जांपल. वी हैव टेकन डिफरेंट स्लोप. हमने 2 स्लोप लिए, दैट इज़ 2 कर्व ली, 2 डिमांड कर्व DA एंड DB. जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें थीटा ज़्यादा है इस वाले थीटे से, सो जिसका थीटा ज़्यादा होता है वो उतना ही नेगेटिव में चला जाता है. तो स्लोप ऑफ DA विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ DB. नाउ यहाँ पर हमने प्राइसेस लिया है OP, फिक्स कर दिया प्राइसेस. टू कंपेयर दैट जो डिमांड कर्व है, 2 डिमांड कर्व लिए है, वो स्लोप पर डिपेंड करती है कि नहीं करती. अब इन दोनों का स्लोप डिफरेंट है. DA और DB का स्लोप कितना है, DP बाय इसका स्लोप कितना है, DA वाली का. DA का स्लोप इज इक्वल टू DE का स्लोप, और DE का, क्योंकि सिमिलर लाइन है ना,
तो डी का स्लोप कितना है, डी पी बाई पी ई, और डी बी का स्लोप कितना आएगा, डी बी का स्लोप इक्वल टू डी एफ का स्लोप इक्वल टू डी पी बाई पी एफ। मगर अब इन दोनों में डी पी और डी पी तो बराबर है, मगर पी ई इज़ लेस देन पी एफ और पी एफ इज़ ग्रेटर देन पी ई। सो इट, जब इसका न्यूमरेटर बड़ा है इस वाले का, दैट इज़ डी बी कर्व का न्यूमरेटर पी एफ इज़ ग्रेटर देन है, तो इसकी क्वांटिटी तो लेस होगी ना इससे। सो स्लोप ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ ई पी एट ई पॉइंट क्या आ गया, लोअर बाय अपर, लोअर कितना है ई ए बाय डी ई, ई पी एट एफ इज एफ बी बाय एफ डी। नाउ आई वॉन्ट टू कंपेयर दिस इन ट्रायंगल ओ डी ए, पी ई इज पैरेलल टू ओ ए। इस वाले ट्रायंगल में पी ई इज पैरेलल टू ओ ए, तो इसका मतलब क्या आता है, ये सिमिलर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जैसे मैंने पहले एंगल से बताई थी आपको। इसमें अगर हम ड्राइव करें, यहाँ पर ई ए बाई ई डी किसके बराबर आता है, ई ए बाई ई डी इक्वल्स टू ओ पी बाई पी डी, पहले भी हमने देखा था। सो फ्रॉम ए, ई ए बाई ई डी इक्वल टू ओ पी बाई पी डी, ई पी एट ई जो इसके बराबर था। सिमिलरली फॉर बी पॉइंट इन ट्रायंगल ओ डी बी, पी एफ इज पैरेलल टू ओ बी, ओ डी बी पी एफ इज पैरेलल टू ओ बी। सो दैट इज ई पी एट एफ कितना था, एफ बी बाई एफ डी, एफ बी बाई एफ डी इक्वल्स टू ओ पी बाई डी पी या फिर पी डी। एफ बी बाई एफ डी इक्वल टू ओ पी बाई पी डी, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल। देखो इसका ई पी भी इतना ही आ रहा है ओ पी बाई पी डी, और इसका ई पी भी ओ पी बाई पी डी आ रहा है, तो इसका मतलब तो प्राइस इलास्टिसिटी दोनों की सेम है। सो आई वॉन्ट यू टू इससे कंक्लूजन क्या निकला, हमने क्या लिया था, हमने लिया था दो डिमांड कर्व जिसका स्लोप डिफरेंट है, जिसका स्लोप डिफरेंट है, और हमने रिजल्ट क्या पाया कि ई पी इनका सेम आ रहा है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकला, सो ई पी आर सेम फॉर टू डिफरेंट कर्व विद डिफरेंट स्लोप। सो कंक्लूजन इज ई पी इज नॉट सेम थिंग एज स्लोप, एज विद डिफरेंट स्लोप but still EP is same. EP is not same thing as slope. If you consider EP that I want to show you here कि EP at R, tangent at R is greater than tangent at S, मगर और EP at R is greater than EP at S, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको स्लोप से रिलेट करते हैं। अब देखो स्लोप डिफरेंट थे मगर फिर भी EP 1 आया, दोनों का सेम आया, तो इससे भी कंक्लूडेड दैट कि हम EP को स्लोप से कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ, आई विल बी टेकिंग ओनली फ्यू मिनट्स, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंप्लीटिंग द होल चैप्टर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन if price elasticity is elastic or inelastic. This is the last topic in this video. Availability of substitute, like we discussed earlier on, जितने ज़्यादा substitute होंगे demand tends to be elastic. I have explained it also, TV, Nirma, Himani, वो सब वाला example I have explained this. So if prices of a Coca-Cola increases, people will shift in large number from other colas to other colas. अगर प्राइसेस कोको कोला के इंक्रीज़ कर गए, अगर कोको कोला के बहुत ज़्यादा सब्सिट्यूट है, जैसे पेप्सी है, मिरिंडा है, फ्रूटी है और स्प्राइट है, ड्यू है, तो अगर उसके बढ़ गए तो कोको कोला के कस्टमर
ख़त्म हो जाएंगे, मतलब बहुत लार्ज नंबर में मूव कर जाएंगे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। दैट इज़ डेल्टा क्यू इसका बहुत ज़्यादा आएगा, डेल्टा क्यू नेगेटिव में आएगा, मगर यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिया है। सो परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी, दैट इज़ इलास्टिक। सो इफ़ पीपल विल शिफ्ट टू, सो अब सब्स्टिट्यूट नॉट अवेलेबल, अगर वो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो इलास्टिक है, याद रखना। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो इन इलास्टिक होगा, डिमांड टेंड टू बी इन इलास्टिक एज सॉल्ट इज देयर। इफ प्राइसेस ऑफ सॉल्ट डिक्लाइंस बाय लार्ज क्वांटिटी but we see that there is a minuscule change in the percentage change in the quantity of consumption of salt, because salt is required in a certain quantity daily, so no or very small change in the Q. So this is the inelastic. What we are discussing the determinant, जो कौन से फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ को बताते हैं कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। नाउ प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट, कंज्यूमर कितनी इनकम किस प्रोडक्ट पर स्पेंड कर रहा है, वो भी डिपेंड करता है। इफ़ ही इज़ स्पेंडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम ऑन अ सर्टेन प्रोडक्ट, तो क्या होगा, अगर मैं उस प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा ही घटा दूंगा या फिर ज़्यादा ही बढ़ा दूंगा। सपोज़ कंज्यूमर ने बहुत ज़्यादा इनकम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी पर स्पेंड कर रखी है, तो ग्रेटर द इनकम स्पेंट ऑन अ गुड ग्रेटर विल बी इट्स EP। वाई? बिकॉज जैसे ही मैं उसके प्राइसेस बढ़ाता हूँ उस प्रोडक्ट के जिस पे बहुत सारा पैसा कंज्यूमर का लग रहा है, तो कंज्यूमर वहाँ से वर्कआउट करना लार्ज नंबर में स्टार्ट कर देगा। नेगेटिव क्यों होगा, मगर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा। मगर यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट और मैच बॉक्स, हमारे घर में जो होता है उस पर हमारा मिनिस्कल स्पेंड होता है, सम स्पेंड फ्रैक्शन ऑफ इनकम ऑन दैट। सो ये इनइलास्टिक होते हैं, और इफ़ अगर इसके हम प्राइसेस बढ़ा भी देते हैं विल नॉट मेक एन इफेक्ट ऑन वंस पॉकेट, सो क्यू रिमेन्स सेम। अगर हम जैसे क्लॉथ का एग्जांपल लेते हैं, इंडियंस में क्या होता है, क्लॉथ पे हम लोग बहुत ज़्यादा, कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। सो अगर क्लॉथ के प्राइसेस अगर डाउन आते हैं तो हमारे पास बहुत पैसा बच जाएगा, क्योंकि हमने ना इतना पैसा लगाया हुआ है क्लॉथ के ऊपर कि अगर उसके प्राइसेस घटते हैं तो हमारे पास बहुत पैसा बच जाएगा। अगर मान लो आप 100 कपड़े ख़रीद रहे थे और उसके प्राइसेस आगे डाउन, तो 100 में से मान लो प्राइसेस आगे डाउन बाय 10 रुपीज़, तो आपके पास 1000 रुपये और ज़्यादा हो गए ना, तो 1000 रुपये ज़्यादा हो गए, आप क्लॉथ ही खरीदोगे। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि इनकम कहाँ पर कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है। ये भी आपको हेल्प करता है कि वो प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। नंबर ऑफ़ यूजेस ऑफ ए कमोडिटी ग्रेटर द यूजेस अ प्रोडक्ट है। अगर मिल्क है, मिल्क हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें घी भी, कर्ड भी, स्वीट्स भी, हम ड्रिंक भी बना सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं, लस्सी से हम कढ़ी बनाते हैं। तो ये भी मतलब अगर उसके जितने ज़्यादा यूजेस है किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। अगर उसके सपोज़ इलास्टिक का मतलब क्या है, सपोज़ उसके प्राइसेस बढ़ गए ना मिल्क के प्राइसेस, लोग क्या करेंगे, जो उसके अदर यूजेस है उसको ख़त्म करके सिर्फ इम्पोर्टेंट यूज़ में, दैट इज़ ओनली टू फीड चाइल्ड एंड सिक पर्सन, तो वो सिर्फ उनको ही खिलाएंगे। अगर उसके प्राइसेस डिक्लाइन कर गए तो वो सब चीज़ों में यूज़ करने लग जाएंगे। दैट इज़ व्हाट, इसके जितने नंबर ऑफ़ यूजेस होंगे सिंगुलर प्रोडक्ट के, तो उसका उतनी ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। अब सोल्ट तो नहीं रहेगा इसमें सूटेबल एग्जांपल। अब कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन टू गुड्स, अ कार कॉम्प्लीमेंट्स अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। एक कार होता है, उसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए होता है, लुब्रिकेट अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड ऑल दिस, देयर इज़ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो सर्विस करने पर डलता है। उसके साल भर में एक बार सर्विस होती है गाड़ी की। सो अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए तो वो इतना अफेक्ट नहीं डालेगा उसकी कॉस्ट पर, क्योंकि वो एक ही बार डलता है। तो that product is a inelastic in demand,
क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी पर इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो इनइलास्टिक ही रहा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बताते हैं कि हम लोग, ये डिटर्मिनेंट्स है सारे के सारे। और टाइम एंड इलास्टिसिटी, अगर time and elasticity are those factors that demand is more elastic if time period is long. Suppose a firm finds prices of a material rises, अगर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज कर जाते हैं, at all of a sudden it cannot all of a sudden switch to cheaper one. अगर कोई भी फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसके प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। बढ़ने से क्या होगा, अब फर्म की जो मशीन्स हैं वो उस रॉ मटेरियल से अकोमोडेट करती है जिसके प्राइसेस बढ़े हैं अभी, तो एकदम से वो स्विच नहीं करेगा मशीन्स भी, और मशीन्स में मॉडिफिकेशन एकदम से तो कर नहीं पाएगा। हाँ, मगर उसको टाइम दिया कि टाइम से अब 6 महीने बाद देखोगे कि उसकी मशीन में वो मॉडिफिकेशन कर लेगा फॉर द चीपर प्रोडक्ट्स। तो अगर टाइम ज़्यादा दें उसे, तो वो भी डिपेंड करता है कि वो सब्स्टिट्यूट कर देगा उसको। इट नीड्स टाइम टू मॉडिफाई मशीन एंड रिसर्च। तो अगर अब क्या होगा, अब प्राइसेस वो एकदम से स्विच करेगा ना, टाइम पीरियड ज़्यादा, अब 6 महीने बाद देखोगे कि जो प्राइसेस जिसके बढ़े हैं वो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी 6 महीने बाद या 1 साल बाद। सो टाइम इज़ ऑल्सो अ important factor. We will be covering this in the next video, cross elasticity of demand. I hope I covered this in a better detail. Thank you. Do review, rate and review the video.